Hello students, this is Jyoti Sharma. Once again, welcome to my English class. Hope you all are safe and enjoying this precious time with your parents and you are not troubling them at all. So enjoy this precious time with your beloved family, and this is the time to enhance your skills. Besides students, you are supposed to give some time to your studies as well. So what you say? Let's start our today's lesson. But before starting today's lesson, I would like to give you a quick recap of the previous story, that is Sherlock Holmes and Red-Headed League. So, Sherlock Holmes and Red-Headed League is a mysterious story written by Sir Arthur Conan Doyle. In this story, students, there are 7 characters. The 5 main characters are Sherlock Holmes, who is a detective; Watson, a doctor friend of Holmes; James Wilson, a pawnbroker. Pawnbroker is a person who gives money to people on interest uh, in spite of their valuable items; Vincent Spaulding, pawnbroker's assistant; Duncan Rose, member of Red-Headed League. The other characters are Meriwether, who is the chairman of the bank; Peter Jones, a police officer. सो इस स्टोरी में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं, 5 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें शार्लोक होम एक डिटेक्टिव है, वॉटसन डॉक्टर फ्रेंड है होम्स के, जेम्स विल्सन पॉन ब्रोकर हैं, विंसेंट स्पोल्डिंग पॉन ब्रोकर विल्सन के लिए काम करते हैं, डंकन रोज रेड हेडेड लीग के मेंबर हैं, और अदर 2 कैरेक्टर्स जो हैं बैंक के चेयरमैन मैरी वेदर हैं, पीटर जॉन्स एक पुलिस ऑफिसर। In this story, James Wilson comes to Sherlock Holmes with an unusual case. Wilson is an average looking businessman, a worn hat, an old brown overcoat, dirty black coat, and strikingly red hair. So Holmes introduces Wilson with his doctor friend Watson. इस स्टोरी में जेम्स विल्सन, जो कि एक पॉन ब्रोकर हैं, वो होम्स डिटेक्टिव के पास आते हैं, एक अजीब सा केस लेके आते हैं। उन्होंने एक फटा हुआ पुराना सा हैट पहना हुआ है, ब्राउन ओवरकोट पहना हुआ है, डर्टी से पैंट पहने हुए हैं, उनके जो हेयर हैं वो रेड हैं। और फिर होम्स क्या करते हैं, अपने डॉक्टर फ्रेंड वाटसन से विल्सन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। So now the question arises, what was his case? His case was that there was a advertisement in the newspaper that there is a vacancy in the Red-Headed League, and those person who are more than 21 years old can apply for the job. They will get £4 a week for a very little work. They can contact to Duncan Rose. Now the league had been ended. सो विल्सन बताते हैं केस क्या था कि उन्होंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीज़मेंट देखा था, जिसमें दिया हुआ था कि जो भी लोग 21 ईयर्स से बड़े हैं वो रेड हेडेड लीग में अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें £4 दिए जाएंगे बहुत ही थोड़े काम के लिए, और उन पर्सनस के जो हेयर हैं वो रेड होने चाहिए, और वो डंकन रॉस को ऑफिस में, रेड हेडेड लीग के ऑफिस में, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ द लीग had been ended. He also told them his assistant Vincent Spaulding told him about this advertisement, and he was ready to work for the half wages and spends a lot of time in the basement and clicking pictures. विल्सन होम्स को बताता है कि उनका जो असिस्टेंट है, जो विंसेंट स्पोल्डिंग है, उसने बताया था न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट के बारे में कि सर ऐसे रेड हेडेड लीग में एक जॉब है और मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए काम कर ही रहा हूँ और आप इस लीग में जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत थोड़े काम के लिए ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और वो उसने बताया कि जो विंसेंट स्पोल्डिंग, उनका जो असिस्टेंट था, वो बेसमेंट में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करता है और फ़ोटो क्लिक करने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, वो आधे पैसे में ही काम करने के लिए रेडी है। Then Holmes took the case in his hands and he went to Wilson's house. He banged his stick, but he didn't hear any sound. He banged his stick to identify whether it sounds hollow or not. He saw a building where the thieves could be interested in. They reached the suburban bank and police officer banged the stick there. Meriwether heard that there was a hollow sound. Then he concluded that there is a tunnel dug behind the Wilson's house and near to the bank. So they all together caught Vincent Spaulding and Duncan, and they were revealed and they were punished. अब स्टोरी में शार्लोक होम्स, जो कि एक डिटेक्टिव हैं जो केस सॉल्व करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस केस को सॉल्व करूंगा। वो विल्सन के घर जाते हैं और उसके घर के बाहर ना ग्राउंड पे एक स्टिक को बैंग करते हैं। उन्होंने सोचा अगर ये स्टिक होलो साउंड करेगी, खोखला साउंड करेगी, तो वहाँ पे टनल है, अगर खोखला साउंड नहीं करेगी तो वहाँ पे टनल नहीं है। तो उन्होंने क्या देखा, जब स्टिक बैंग की तो वहाँ से होलो साउंड नहीं आई। फिर उन्होंने उनके घर के पीछे से स्टिक बैंग की तो उन्हें होलो साउंड सुनाई दी। फिर वो मैरीवेदर और पुलिस ऑफिसर की मदद से
वहाँ पे बैंक में गए, वहाँ पे उन लोगों ने स्टिक बैंक की, तो वहाँ पे उन्हें होलो साउंड सुनाई दी, तो उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे एक टनल डिग की गई है और जो कि उसके विल्सन के घर तक जाती है और वहाँ से गोल्ड रॉब करने के लिए बैंक से ये टनल डिग की गई है। तो उन्होंने मिलके विंसेंट और डंकन रोज दोनों फ्रेंड्स को पकड़ लिया और उन्हें पनिश किया गया। So block 1, lesson plan 2, linking clues together. So aim is, students, you will identify character motives and connecting clues. Character motives means reason behind the character's behavior and action throughout the scene and story. स्टूडेंट्स, क्या होता है जब भी हम कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न जरूर होता है, बिना रीज़न के कुछ भी नहीं होता। I hope you all read the complete story. So far in the story, Holmes is able to stop Wilson's assistant from robbing a bank. Wilson's assistant, Vincent Spaulding, had dug a tunnel from Wilson's home to the bank to steal gold. At the end, we are left with some unanswered questions, like why did these thieves come up with the red-headed leap? How did Holmes learn that the thieves would rob a bank? Sherlock Holmes solves the case by linking clues together and reasoning why certain actions happened and what could be the reason for the certain facts. So students, मुझे लगता है आप सभी ने स्टोरी पढ़ ली होगी। तो अभी तक स्टोरी में क्या होता है कि होम्स जो है विल्सन के जो असिस्टेंट हैं विंसेंट स्पोल्डिंग, उनको रोक पाते हैं बैंक को रॉब करने से, और वो देखते हैं कि विंसेंट स्पोल्डिंग ने एक टनल डग कर ली थी, वहाँ पे एक सुरंग खोद दी थी वहाँ पे बैंक तक, ताकि वो वहाँ से गोल्ड चोरी कर सके। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स हमें नहीं मिले हैं, लाइक ये जो थीव्स थे ये क्यों रेड हेडेड लीक के साथ आए, और होम्स को कैसे पता चला कि जो ये थीव्स हैं बैंक को रॉब करने वाले हैं। शर्लॉक होम्स जो इस केस को सॉल्व करते हैं, इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, वो इन सभी क्लूज को ज्वाइन करते हैं, फिर वो एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि आखिर ये सब क्यों हुआ। सो टुडे वी विल लिंक द क्लूज फ्रॉम द स्टोरी एंड आइडेंटिफाई हाउ होम्स सॉल्व द मिस्टीरियस केस ऑफ द रेड हेडेड लीक। सो आज हम क्या करने वाले हैं कि आज हम इन सभी क्लूज को ज्वाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और फिर देखते हैं कि होम्स कैसे इस मिस्टीरियस केस को सॉल्व कर पाते हैं। सो क्वेश्चंस आर, व्हाट वाज वन ओड थिंग दैट द असिस्टेंट डिड, व्हाट वाज द ओड थिंग दैट द होम्स डिड, ऐसी कौन सी अजीब सी चीज़ थी जो असिस्टेंट ने की, ऐसी कौन सी अजीब चीज़ थी जो होम्स ने की, व्हाट वाज एन ओड थिंग ही सैड, और क्या उन्होंने अजीब सा बोला था। सो व्हाई डिड दे से और डू दीज थिंग्स, और ऐसा उन्होंने क्यों कहा और क्यों किया। Odd things or action. Holmes bangs his stick outside Wilson's house. Assistant spends a lot of time in the basement. Why and motive? Assistant was digging a tunnel and Holmes was checking if the basement was in front of the house. सो अजीब सी चीज़ क्या की थी, होम्स ने अपनी स्टिक बैंग की थी विल्सन के घर के बाहर ये चेक करने के लिए कि होलो साउंड होता है या नहीं। अगर वहाँ पे होलो साउंड होता है तो वहाँ उनके घर के सामने टनल खोदी गई है, और वरना फिर उनके घर के पीछे से टनल खोदी गई है। असिस्टेंट ने क्या अजीब सी चीज़ की थी, वो बहुत ज़्यादा टाइम बेसमेंट में स्पेंड करता था। वाई मोटिव, वट वॉज द मोटिवेशन, वट वॉज द रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज असिस्टेंट वॉज डिगिंग अ टनल, वो एक टनल डिग कर रहा था वहाँ पे, और होम्स ये चेक करना चाहता था कि बेसमेंट जो है, टनल जो है, वो घर के सामने है या घर के पीछे है। Now, if we link the all clues together about assistant, like working for half the wages, the worn and creased knees of the pants, and the free mornings for 8 weeks in Wilson's absence, we can guess that he was doing something mysterious. सो अगर हम इन सभी क्लूज को, सभी हिंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि लाइक वो हाफ वेजेस में, आधे पैसों में ही काम करने के लिए तैयार था। उसकी जो पैंट्स के नीज थे वो वॉर्न, बहुत ही घिसे हुए थे, क्रीज थे, और वो मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा काम नहीं होता था विल्सन की एब्सेंस में, फिर भी वो वहाँ पे रहता था। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या गेस कर सकते हैं कि समथिंग मिस्टीरियस वो करने वाला था, कुछ ना कुछ तो होने वाला था। इफ़ वी लिंक द क्लूज अबाउट होम्स, लाइक ही bangs his stick outside Wilson's house on ground. He did this to check whether the basement was in front or behind the house where assistant used to spend a lot of time. He would have heard a hollow sound
इफ़ इट हैड बीन इन द फ्रंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने अपने एक स्टिक बैंक की थी विल्सन के घर के सामने, ये पता करने के लिए कि वहाँ पे होलो है या नहीं है। तो होलो साउंड नहीं थी वहाँ पे, इसका मतलब जो टनल है वो घर के सामने नहीं थी, वो घर के पीछे से थी। ही प्रोबेबली शुक हिज हेड बिकॉज ही डिडंट हियर अ होलो साउंड। उन्होंने अपना सिर हिलाया क्योंकि उन्हें कोई होलो साउंड सुनाई नहीं दी। ही फिगर्ड आउट that the basement was not in front, it could be at the back of the house। उन्हें पता चल गया कि जो ये बेसमेंट था वो घर के पीछे वाली साइड हो सकता है। When he goes to the road behind Wilson's house, he sees a building that thieves could be interested in, the city and the suburban bank। That's why he said that a terrible crime was going to happen। जब वो वहाँ पे गए पीछे की साइड, उन्होंने एक बिल्डिंग देखी जिसका नाम सबर्बन बैंक था। उन्हें लगा कि ये जो थीव्स हैं इस बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने तभी की तभी वहाँ पे कहा कि एक टेरिबल क्राइम होने वाला है। We can link the clues together and identify why the character said anything or did this। तो किसी भी मिस्ट्री को हमें सॉल्व करना है, किसी भी कंक्लूजन तक हमें पहुंचना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सारे क्लूज को, जो जो हिंट्स हमें मिलते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हमें ये पता चल जाता है कि इस करेक्टर ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न हो सकता है। सो मिस्टर मैरीवेदर हियर्स अ होलो साउंड व्हेन ही बैंग्स द स्टिक ऑन द ग्राउंड ऑफ द बैंक बिकॉज द थीव्स हैड डग अ टनल अंडर द बेसमेंट ऑफ द बैंक। सो मैरीवेदर जो बैंक के ऑफिसर थे, वहाँ पे उन्होंने बैंक में स्टिक बैंक की, वहाँ पे उन्हें होलो साउंड सुनाई दी। तो वहाँ पे उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे ज़रूर टनल डिग की गई है और वो विल्सन के घर के पीछे तक वहाँ से की गई है। तो ये सब उस डंकन रोज की वजह से हो रहा था जो विल्सन स्पॉर्डिंग के साथ मिला हुआ था। तो इस तरीके से ये जो केस है वो सोल्व हो जाता है, रिवील हो जाता है। So students, this is your workbook English volume 1 of 7th class. So now the lesson plan has been completed. Now we should discuss the question answers in it. So students, let's discuss the question answers. So this is S2, your worksheet linking clues together. First question is answer Wilson's question to help him understand the mystery. So let's read what is written in it. 8 weeks passed and then suddenly the job came to an end. This morning I saw a note on the door that said the red-headed league is no more. Now Wilson is telling to Holmes that कि 8 weeks हो गए हैं और अचानक वहाँ पे लिखा हुआ मिला कि जो रेड-हेडेड लीग है ये बंद हो गई है और मुझे समझ नहीं आया ये सब क्यों हुआ। I want to figure out about them. We had never had any kind of disagreement about the work. I want to know where they are and why they played this joke. If it was a joke on me। अब विल्सन जो है होम्स को बताते हैं कि मैं ये सब पता करना चाहता हूँ कि ये सब क्यों हुआ, अचानक से ऐसे लीक कैसे बंद हो सकती है, क्या उन्होंने कोई जॉक किया था मेरे साथ, अगर ऐसा किया था तो ऐसा क्यों किया था। नाउ द क्वेश्चन इज हु सेट अप द रेड हेडेड लीक। तो रेड हेडेड लीक किसने सेटअप की थी स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको। So red-headed leak was set up by Vincent Spaulding, who was his assistant, and John Clay, who was the member of the red-headed league। एंड वाई डू यू थिंक इट वॉज सेटअप, और आपको क्यों लगता है कि ये क्यों सेटअप की गई। तो जैसा कि आपने स्टोरी में पढ़ा है, इट वॉज सेटअप टू रोब अ बैंक, समथिंग मिस्टीरियस वॉज गोइंग टू हैपन। गिव रीजन्स फ्रॉम योर आंसर। So students, you see that the worn knees of the assistant, and he was ready to work for the half wages, and he spent a lot of time in the basement, and Duncan Rose and Vincent Spaulding both had identical red hair. So in this way, if we join all the clues together, we can easily identify that this league was established for robbing a bank. Now the second question is why does Holmes get angry when Mr. Merriweather bangs his stick on the basement floor in the frame 25। So Holmes को क्यों गुस्सा आता है, जो मैरीवेदर होते हैं बैंक के ऑफिसर, वो जब अपनी स्टिक को बैंग करते हैं वहाँ पे उनका गुस्सा आने का क्या कारण है। तो गुस्सा इसलिए होते हैं कि जो होम्स हैं वो ये सोचते हैं कि अगर जो थीव्स हैं वहाँ पे बैंक में ऑलरेडी उन्हें उनकी प्रेजेंस का पता चल गया तो वहाँ से भाग जाएंगे और वो उनको पकड़ ही नहीं पाएंगे। सो होम्स गेट्स एंग्री व्हेन मैरीवेदर बैंग्स हिज स्टिक ऑन द बेसमेंट फ्लोर इन द फ्रेम 25 बिकॉज ही कुड हैव रिवील्ड देयर प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ द थीव्स एंड द थीव्स वुड हैव रन अवे इफ दे फाइंड द क्लूज ऑफ बीइंग देयर प्रेजेंस देयर।